Assalamu alaikum students. This is JavaScript part 5. We will start covering arrays today. अच्छा as you know कि array जो है it is basically a list of items. ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें it is a list of items. यानी अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में सेव करें, like in one variable we can save only one value, like if you want to store multiple values in a single variable, so in that case we have to use arrays. Here you can see an array is a special variable which can hold more than one value at a time. यानी एक से ज़्यादा वैल्यू को आप इस वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं. If you have a list of items, a list of car names for example, storing the cars in a single variable could look like this. देखें, एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम एक अलग अलग वेरिएबल ले लें, दिस इज सिंगल वेरिएबल, और इसमें आप इसको जो है ना सेव करें. दिस इज द कार नेम. इस तरह हमारे पास ये सेकंड हो गया एंड थर्ड. But however, what if you want to loop through the cars and find a specific one? And what if you had not 3 cars but 300? यानी अगर आपके पास कल को 300 या 300 कार्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या आप 300 वेरिएबल्स लेंगे? No, it's not about programming practice. So for that you have one solution, that is array. Now how would you create an array in JavaScript? So this is very easy as compared to other programming languages. Here we will first we will declare the array name and the array items in square brackets. Like in this example, you can see, let me zoom it. Okay, in this example, from here I would start script. JavaScript start हुआ, variable cars, this is the first element, second and third item. then document dot get element by id, यानी डेमो जो है ये कहाँ पे है id, ये यहाँ पे मौजूद है पैराग्राफ में. तो इस पैराग्राफ के अंदर यानी इस स्पेस जो मैंने दिया है इस लोकेशन पे आप इस कार्स को प्रिंट करेंगे. तो कार्स क्या है? कार इज द नेम्स ऑफ दीज आइटम्स. ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारे पास ये आएगा. Now we will now shortly do a practical task of how to declare an array, how to initialize an array and how to access an array. Access किस तरह करेंगे? How to access the element of an array? You access an array element by referring to the index number. Index number जो है it's a value through which we can access the array. Here you can see the statement accesses the value of the first element in the cars. यानी आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूं तो आप एरे नेम विद द इंडेक्स नंबर दे दें, और तो इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर जो आइटम है वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा. ठीक. अच्छा, हाउ टू एक्सेस द फुल एरे, यानी जो फुल एरे को अगर आपने प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या है कि आप जस्ट एरे का नाम लिख के इट विल बी प्रिंट वेयर यू वांट टू प्रिंट इट ऑन द ब्राउज़र. ठीक है. चलिए, बिफोर going to detail, let me run a very small short example of how to access and define and declare an array. So notepad मैंने यहाँ पे open किया हुआ है. Here you can see on the screen script. हमारे पास already as you know tags हम put करेंगे. Okay, now I will declare an array variable ARR. This is the array name, and here I will put some characters like F A
T A. Okay, so this is how you declare an array. Okay, and this is the array item or list of items. Okay, so after these items मैंने declare किए. Now how would you print a single item? So we have multiple output commands, as you know. Let me try one of them, like document dot write. Sorry. Okay, array name. And suppose if I want to, as you know, array starts from 0. Okay, so if is यहाँ पे जो if है ये 0th number item है, first, second and third. Okay, so let me print the third item. Okay, okay, and I'm closing this. Now I'm going to save this program. Control S मैंने सेव किया. The file name is string1.html. ऑलरेडी हमारे पास ये सेव है. F5 प्रेस करूँगा तो ये ऑलरेडी बात यहाँ पे है कि ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव है. ये रन हो जाएगा. Okay, T. So T is on position number 3 but on the array index number 2, 0, 1 and 2. Okay, this is how you can access or print a single element. Acha, if I remove this index number and again I saved it, I run it, you will see the whole items in the this array. Okay, so this is how you can print the whole array. अच्छा, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है. सेकंड ये है कि you can put a double quote here also. Okay, मैं डबल कोट्स भी इस तरह लिखता हूँ, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि डबल कोट सिंगल कोट दोनों ठीक है. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूँ FATA फाटा, ठीक. तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग, चूंकि स्ट्रिंग और एरे एक ही चीज़ है. सो इस केस में स्ट्रिंग जो है इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो नाउ चेक कि इसका रिजल्ट क्या है. सो इट विल गिव यू दिस स्ट्रिंग आल्सो. ओके, so again if I want to print suppose the 0th या first element, so what it would give us as an output, so this will be f यानी 0th element या जहाँ से array start हुई है. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास है accessing an array of element. अच्छा, sometimes ठीक है, जावास्क्रिप्ट चूँकि हम HTML प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्या होगा कि हम जो है किसी भी HTML के टैग को इस स्क्रिप्ट के साथ जो है ना, इनको इकट्ठे हम यूज़ कर सकें. ठीक, तो उसके लिए एक तरीका तो जो है वो तो मैंने बता दिया था कि एक तो डेमो वाला जो आईडी वाला तरीका है. ठीक है, एक तो ये है जो कि यहाँ पे एग्जांपल में है, लाइक यू कैन सी हियर document dot get element by id. एक तरीका हमारे पास ये है. ठीक, यानी यहाँ पे डॉट inner.html और फिर जो है ना जिस भी उसका डेमो जिस टैग का आईडी है तो वहाँ पे ये चला जाएगा. ठीक है, लाइक लेट मी ट्राई इट. यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि h1 का जो टैग है इसके साथ आई एम डिक्लेयरिंग और एन आईडी विद द नेम डेमो. ठीक है, और कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बस मैंने इसको डेमो नाम दिया है h1. और यहाँ पे आई एम क्लोजिंग h1. ठीक, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फाटा का वर्ड जो है ना वो प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आउटपुट के लिए कमांड है this one, I will simply copy this क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है, I cannot memorize it.
मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी हमारे पास इसकी क्या होगी, डेमो होगी। अब डेमो किसकी आईडी है, h1 की। डॉट एनएचटीएमएल, यानी एचटीएमएल के अंदर इसको प्रिंट करें। तो क्या प्रिंट करें, ए डबल एरे को यहाँ पे प्रिंट करो। कहाँ पे प्रिंट करो, जिस टैग की आईडी हमारे पास डेमो है। आई एम गोइंग टू मेक इट कमेंट हेयर, ठीक है। इसको रन करें जी। क्या हुआ कि इसका जो फॉन्ट या साइज है या जो h1 टैग है वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ। सपोज इफ आई वांट टू इंसर्ट अनदर टैग बोल्ड, बोल्ड तो खैर ऑलरेडी है। अंडरलाइन इसको अगर हम करना चाहें तो यू कैन मेक इट अंडरलाइंड, ठीक। सेव, रन, करेक्ट। So this is how you can use HTML elements and these script commands, ठीक है। सिर्फ array की बात नहीं, you can use any script JavaScript element with HTML tags, ठीक। एक तरीका हमारे पास ये है। अच्छा, एक और काम इस तरह करते हैं कि आगे जाते हैं कि आगे हमारे पास अच्छा एक लूप भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लूप के लिए करते हैं कि वहाँ फाटा जो है इसको अगर हम अलग अलग प्रिंट करवाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। इफ़ को अलग, एक वाले को टी को एक वाला, इस तरह लूप्स भी हमारे पास थोड़ी बहुत कवर हो जाएंगी। अच्छा, लूप के लिए ये करें कि let's declare a variable with for index I for, आपको आई एम होपिंग कि आपको लूप्स का मेथड या तरीका आपको याद है। as array starts from 0, I am starting it from 0, I less than or equal to 0 1 2 and 3, I प्लस प्लस, मैंने लूप यूज किया। और लूप में चूंकि मैं कुछ प्रिंट करूंगा तो why not copy this command from here to here, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, और यहाँ पे why not put here I, तो array का जो 0th एलिमेंट है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगले में सेकंड एलिमेंट, थर्ड एंड इस तरह आगे ये जाएगा, ठीक। चलिए इसको रन करते हैं। इसने हमें दिया है FATA, ये लास्ट पे ये चला गया है। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि इसने जब लूप ख़त्म हुआ तो आखिर वैल्यू हमारे पास A थी, तो ये आखिर में ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम इफ़ ए टी और ए को किस तरह अलग अलग प्रिंट करेंगे जब सारे हमारे पास आ जाएं, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज करूँगा, आपको थोड़ी सी चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगेगी। वो ये है कि मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ txt के नाम से, यानी टेक्स्ट, और इसमें मैं डबल कोट्स में सेव कर लूँगा ये जो कमांड्स हैं u और h1 को, ठीक। ठीक, ये जो मैंने यहाँ पे किए हैं, इस txt के अंदर मैंने ये दो HTML के एलिमेंट्स को सेव किया, ठीक। अच्छा, सेव करने के बाद चले मैं इस तरह करता हूँ कि आई रिप्लेस इट विद डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या राइट कर दो, पहले इस txt वेरिएबल को राइट कर दो, यानी दो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी u और h1। कंकेटिनेशन करें, मर्ज करें, प्लस करें किसको, एरे को, ए डबल आर, एरे को मर्ज करें। एरे का कौन सा, आई पहला आइटम, और इसके बाद जो है इसको करें क्लोज।
आई की वैल्यू 0 होगी, एरे 0 पे कौन सा आइटम मौजूद है, एफ, और साथ ये दोनों टैग्स भी आ जाएंगी HTML के, एच यू और H1। ठीक, इसको मैं सेव करता हूँ, F5 के थ्रू इसको रन भी करें। ओके, FATA फाटा। ओके, इस तरह करते हैं कि हम एक चौथा वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इनको क्लोज भी कर देंगे, टेस्ट लाइक txt 1। ठीक, सॉरी, H1 को क्लोज करें और U को भी क्लोज करें विथ दिस टैग। ठीक, क्लोज करने के बाद जो है आप इनको मर्ज करें विथ txt1। ठीक, सेव करें, F5 एंड रन इट। अच्छा, कुछ आपको आइडिया हुआ कि ये इस तरह क्यों तब आ रहा है? तो आई विल एक्सप्लेन दिस कोड। जिनको थोड़ा बहुत लूप का आइडिया है और एरेज का, तो वो देखें कि i इज इक्वल टू 0। जब i की वैल्यू 0 है तो क्या करेगा, पहले आएगा txt में क्या है, दो हमारे पास एलिमेंट है, यानी अंडरलाइन भी होगा और h1 भी होगा, प्लस यानी एक ही कोड बन जाएगा, प्लस इसलिए है, एरे 0 यानी f, इसके बाद txt1 यानी ये जो है ये हमारे पास क्लोजिंग इसकी हो जाएगी। फिर लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 पे क्या है, a है if के बाद, तो उसके ऊपर भी ये फिर अप्लाई हो जाएगा एंड सो ऑन, ये कोड जो है ना ये रन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लूप्स like for and while with the arrays also, and you can also merge this code with HTML, a simple code। ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, arrays is object इस तरह है, objects use names to access the members in this, like person dot first name। अब person जो है array का नाम है, first name is an object and John its value। यानी ये भी एक तरीका है कि अगर आप values के साथ यहाँ objects लगाएं, ठीक है, like person dot first name which is John, ये John होगा, person dot last name do, person dot age 46। तो ये जो है ना आप कर सकते हैं, ये एग्जांपल जो है आप खुद ट्राई करें, ये यहाँ पे मौजूद है, ये सारा कोड, पर्सन एरे है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो लाइक पर्सन एंड फर्स्ट नेम, तो इसकी वैल्यू आपके पास है जॉन, तो इसका आउटपुट आ जाएगा, वो आप खुद चेक करें। लूपिंग की तरफ मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि लूप्स का इस्तेमाल आप किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आप, ठीक है, यहाँ से ये फॉर लूप डिक्लेयर्ड है। अच्छा, फ्रूट्स यहाँ पे एरे का नाम है जिसमें बनाना, ऑरेंज, ये सब कुछ मौजूद है, एंड फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी डॉट लेंथ जो है ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है एक फंक्शन है जो कि एरे की लेंथ को फाइंड करता है। ये मेरे ख्याल में C++ के अंदर भी एक लेंथ के नाम से एक एरे की लेंथ को फाइंड करने के लिए पहले से मौजूद एक फंक्शन है। ठीक, अच्छा, प्रॉम्प्ट कमांड की तरफ हम आएंगे। मेरे ख्याल में प्रॉम्प्ट कमांड जो है वो इनपुट के लिए है, लाइक यू वांट टू टेक वैल्यू एज इनपुट। ठीक, सो लेट मी रन एन एग्जांपल। ओके, आई विल रिमूव दिस टेक्स्ट कि यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, डेमो चले हो। ठीक, वेरिएबल a is equal to prompt, ठीक, enter your name। ओके,
इसको आप यहाँ पे करें क्लोज। अच्छा, जो नाम आप एंटर करेंगे वो ए में सेव हो जाएगा और फिर आप ए को डॉक्यूमेंट डॉट राइट या विंडो डॉट अलर्ट या किसी भी आउटपुट कमांड में आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने इसको सेव किया, इसको आप अगर रन करें तो it will ask you for your name, like your name is FATA University। इसको आप ओके करें एंड यू विल सी द नेम देयर। तो आप एक इस तरह असाइनमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक बनाए छोटा सा कैलकुलेटर जिसमें बटन्स होंगे और आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क या इट विल इंसर्ट दैट नंबर। ठीक है, सो आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग बनाएं छोटा सा कैलकुलेटर और जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह के कमांड्स के थ्रू और फिर आप उसको मुझे असाइनमेंट सबमिट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।